Hello students, welcome back to our AKVB e-learning. In today's class, we will learn about chapter number 15, drainage system. I want all of you to open your textbooks. बच्चे लोग, what is drainage system? तो ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक सिस्टमैटिक रिवर सिस्टम सेटअप की गई हो, राइट? So, while observing the physiography of India, it is seen that one main river, along with its tributaries, come from different directions and merge into a single river. अब हमने ये देखा है कि बहुत सारी ऐसी रिवर्स है जो बहुत सारे एक रिवर में से अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में जा निकलती है और फाइनली वो लोग एक रिवर में ही मीट होती है. So, water of this river is emptied into a water reservoir, sea, or a desert. Thus, when a river flows through its system in any area, it is called a river basin. उसे क्या कहा जाता है? रिवर बेसिन. यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखो, ये अगर आपका रिवर बेड है, यहाँ से आपका रिवर फ्लो हो रहा है. ओके, दिस इज योर रिवर फ्लो. सो द पार्ट वेयर द रिवर फ्लो इज सेड टू बी रिवर basin. What is it said to be? River basin. Okay. When a mountain or an upland separates the flow of water from one another, it is called water divide. So the picture over here is given of water divide. That means द अपलैंड, यानी कि अगर कोई रिवर के बीच में ऐसा अपलैंड आ गया है तो वो दोनों पार्ट्स को डिवाइड करता है एंड दिस इज सेड टू बी water divide. What does it said to be? Water divide. Okay. Now, drainage system in India. There are mainly, India enjoys the benefits of two main river drainage system in India. That is Himalayan river and the other is Peninsular river. Himalayan river ये itself दिखा रहा है कि this is from the northern part, whereas this is in the southern and middle portion of the earth. Okay. Peninsular यानी कि peninsular plateau वाला region. Himalayan rivers यानी कि the rivers which are originating from the Himalayas. Rivers of India are divided into two zones according to the physical features. Due to this, a large difference is seen among the Himalayan and Peninsular river. Now, दो जोन्स में उसको डिवाइड करते हैं. अब जो हिमालयन रिवर है वो पूरे साल उसमें वाटर रहता है. क्यों? बिकॉज it is originating from the glaciers and the ice caps that are melting on the floor of Himalayas, right? And and also the river which originate from Himalayas are called perennial rivers. In those rivers water flows throughout the years. Now, two major rivers of Himalaya, Sindhu and Brahmaputra, originate in the northern part of this mountain system. अब हिमालयन रिवर सिस्टम की दो मेन रिवर्स है, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र. सिंधु जिसे हम इंडस भी कहते हैं, राइट, एंड द अदर इज ब्रह्मपुत्र. These rivers have a cut deep gorge by cutting the mountains. Himalayan river across the long way from its origin to the sea. अब वो हिमालय से लेके अपने रिस्पेक्टिव सीज तक जाके पहुंचती है, राइट? सो जो हिमालयन रिवर्स है वो काफ़ी लॉन्ग है और उसमें वाटर की जो अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी पेनिनसुलर रिवर्स. See, now this is over here a picture has been given of different stages of river. So what does this show? That the course of the river, that means this is a place where basically the water is going to start flowing, right? This is the place where water is going to start flowing. Then the region where it flows is said to be upper course, the middle course and the lower course.
So this is what next we are going to learn. 3 stages of river system: upper course, middle course and the lower course. When a river starts from a mountain region, it causes intense erosion, यानी कि वहाँ से बहुत सारी क्वांटिटी में फ्लो इतना ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो सॉइल का पोर्शन है या फिर वहाँ पे जो डिपॉजिट्स वगैरह है वो काफ़ी इरोज होकर नीचे आ जाती हैं. इट कैरीज ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सैंड सेडिमेंट अलॉन्ग विद इट. इट फ्लोज डिक्रीज इन इट्स मिडल एंड लोअर कोर्स. जैसे जैसे वो थोड़े मिडल और लोअर कोर्स में आते हैं उसका फ्लो काफ़ी कम हो जाता है. meanders are seen here. Due to this meandering, the impact of floods or lake is formed in the shape of animal's hoof. Near its delta, a river is divided into many tributaries. This divided area turns into very fertile plain in a triangular shape called delta. See, what did we saw over here was, we discussed what are upper course, middle and lower, right? Now what are meanders? See, meanders यानी कि खड्डे, उसकी फ्लो की वजह से एक शेप, डेफिनेट शेप्स उसे मिलना स्टार्ट हो जाता है. एंड ड्यू टू दिस meandering देर मे बी द कॉज ऑफ फ्लड. ठीक है, उससे अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो पानी पूरे में फैलना स्टार्ट हो जाता है. नियर द लोअर एरिया some oxbow lakes are being formed and the plain fertile land is also formed. The land which is in a triangular shape at the opening of the river is said to be delta. Now this is what we learn about Himalayan river. Now the peninsular river. Peninsular river are seasonal because they are dependent on the rainwater. How are they dependent on? दे आर डिपेंडेंट, completely डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और इसे सीजनल कहा जाता है. हिमालयन रिवर्स को क्या कहा जाता है बच्चे लोग? पेरेनियल रिवर. वेर एज समर इसे सीजनल रिवर कहते हैं. क्यों? बिकॉज आपने कभी सुना होगा कि यहाँ पे ये नदी बह रही थी लेकिन वो सूख गई. वो क्यों सूख गई? समर में मानसून ना होने की वजह से. अगर मानसून में अच्छी रेनफॉल होती है तो वो रिवर वापस फ्लो होनी स्टार्ट होती है. Compared to the Himalayan river, their length is also less and are also shallow. बहुत डीप होती नहीं है और काफ़ी छोटी होती है as compared to Himalayan rivers. Due to the physiography of the slope of the mountain, or most of the peninsular river originate in the Western Ghats. अब वेस्टर्न घाट जो है वो काफ़ी ऊंचा पोर्शन है इंडिया का, तो ज़्यादातर अपनी फिजियोग्राफी के हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवर वहीं से ओरिजिनेट होती है. ठीक है, कहाँ से? वेस्टर्न घाट से. इट फ्लो ईस्टवर्ड एंड मीट बे ऑफ बंगाल. अब कहाँ से फ्लो होकर कहाँ जाती है पेनिनसुलर रिवर? यूजुअली वेस्टर्न घाट से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में. वेस्टर्न घाट्स सर्व एज अ मेजर वाटर डिवाइड फॉर पेनिनसुलर रिवर. वेस्टर्न घाट क्या है? एक मेजर वाटर डिवाइड है, यानी पेनिनसुलर रिवर्स को और हिमालयन रिवर के बीच में एक वाटर डिवाइड बन के थम जाता है. सी बच्चे लोग, अ पिक्चर इज बिन गिवन ओवर हियर द रिवर सिस्टम. तो व्हाट इज डेंड्राइट पैटर्न ऑफ रिवर? So this is what, when the arrangement of river and tributary make the shape of branches of a tree, it is said to be dendritic pattern. यानी कि गंगा, एक बड़ी रिवर में से बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जब निकलती है, जैसे एक बड़े झाड़ में से कैसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हो, तो अगर वैसे सिस्टम है तो हम उसे डेंड्रिक कहते हैं. ट्रेलिस यानी कि द स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम माउंटेन रीजन मीट वन अनदर ड्यू टू द स्लोप्स, दे मेक लाइक नेट लाइक शेप, इट इज कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न. यानी कि देखो नेट जैसा शेप आ जाता है, राइट. बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स एक साथ कहीं पे मिल रही है, फिर कहीं और जाके अलग हो रही है. नाउ द अदर इज रेक्टेंगुलर पैटर्न. व्हेन द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी मीट एट द राइट एंगल, इट डेवलप्स रेक्टेंगुलर पैटर्न, राइट. कोई एक ही एंगल पे अगर जाके कोई रिवर मिल रहा है राइट एंगल पे, ठीक है, 90 डिग्री पे ही अगर वो मिल रहा है अप्रॉक्सली, तो दैट फॉर्म्स
a rectangular pattern and the other one is radial pattern. अब यहाँ पे जहाँ पे अगर माउंटेन से रिवर एमर्ज हुई है तो उसकी सारी तरफ जहाँ पे भी फ्लो होगा वो सारे फ्लोज के स्लोप के अकॉर्डिंगली वो फ्लो होगी. ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द हिमालयन रिवर सिस्टम. दैट इज which are the two main rivers which we saw in Himalayan system. That are the two largest rivers are Sindhu and Brahmaputra. Even Ganga is one of the major rivers that originates from Himalaya. This river are long and many tributaries meet them. When a large river and her many tributaries meet, they form the shape of which is called a system. इसीलिए हम उसे हिमालयन रिवर सिस्टम कहते हैं या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं. The first one is Sindhu or Indus River system. The river Sindhu emerges from Mansarovar. कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चे लोग? Mansarovar. It first flow in the north and then turns westward. North से वो westward turn लेती है. There it enters Ladakh district. कहाँ पे जाती है सबसे पहले? Ladakh district of Jammu Kashmir. Then it forms its gorge and rivers of Jaskar, Nobra, Shyok and Honza meet her. Satluj, Beas, Ravi and Jhelum are the main tributaries. ये आपको याद रखने बच्चा कि कौन से रिवर के कौन से मेन ट्रिब्यूटरीज हैं. तो सिंधु रिवर के कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं? सतलज, बीस, रवि एंड झेलम. सिंधु में से और दूसरी कौन सी रिवर्स एमर्ज होती है? जस्कर, नोब्रा, शायक एंड हंजा. The These five rivers meet river Sindhu near Mithankot in Pakistan. ये पांचों tributaries कहाँ जाके मिलती है सिंधु में? Near Pakistan. The combined flow of this river ultimately flows southward and meet in the Arabian Sea. और जब साथ में सारी ये एक साथ मिलके कहाँ flow हो जाती हैं? In Arabian Sea. This river flow at a slower speed in the plain. एकदम स्लो प्लेन एरिया में उसकी स्पीड बहुत ही कम होती क्योंकि फर्टाइल एरिया है, राइट? स्लोप बहुत है नहीं. About 1/3 of its basin fall in the mountainous region of Jammu Kashmir. 1/3 of basin यानी कि रिवर का जो 1/3 पोर्शन है वो कहाँ पे होता है? माउंटेनियस रीजन में, यानी कि अपर कोर्स में. The second is Ganga river system. It is also known as Bhagirathi. Alkananda, Gangotri area, from the Gangotri area and the Himalayas merge with each other near देवप्रयाग. यानी भगीरथी और अलकानंदा कहाँ से इमर्ज होती है? गंगोत्री से इमर्ज होते हुए देवप्रयाग पे आके मीट होती है. गंगा लीव्स द माउंटेन टेरेन एंड एंटर प्लेन नियर हरिद्वार. अब वो वहाँ से माउंटेनियस रीजन को छोड़ के हरिद्वार में एंटर होती है. मैनी हिमालयन रिवर्स मीट गंगा. बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स गंगा में जाके मिलती है. अमोंग देम आर घाघरा, गंडक एंड कोसी. यमुना emerged from Yamunotri in Himalayas. Following to the right side of Ganga, it merges with Ganga near Allahabad. राइट साइड पे आके गंगा और यमुना एक साथ मिलती है. द सोर्सेज ऑफ घाघरा, गंडक एंड कोसी रिवर्स लाइज इन नेपाल. अब ये तीनों रिवर इमर्ज कहाँ से होती है? नेपाल से. हेंस द नॉर्दर्न प्लेन एक्सपीरियंस फ्लड डिजास्टर एवरी ईयर. इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा हम लोग फ्लड की बातें सुनते हैं, राइट? क्योंकि बहुत सारी रिवर्स है और वो सारी रिवर्स पेरेनियल है और इतना सारा वाटर बढ़ जाता है. ओके, सो इट कॉजेज flood. There is a heavy loss of lives and property in some area. Yet India has been able to attain prosperity in agriculture through the fertile plains from this river. काफ़ी नुकसान भी होता है लेकिन साथ में इसकी में जो वो हायर माउंटेन एरिया से, माउंटेनियस एरिया से जो अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती है और जो वो प्लेन फॉर्म होता है उसकी वजह से इंडिया एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉस्पर है. Few rivers like Chambal, Betwa originate in peninsular plateau and meet Yamuna. अब peninsular plateau से emerge होती हुई चंबल और बेतवा भी यमुना में जाके मिलती है. Son river meets गंगा. और Son river कहाँ जाके मिलती है? गंगा में. यानी कि जो तीन peninsular river है वो जाके मिलती है गंगा और यमुना में.
This river originate in semi-arid regions. Their flow length is shorter and have limited volume of water. Water की quantity भी इतनी ज़्यादा होती नहीं है usually. The combined flow of river from north and south is divided ahead into two branches. अब दोनों का फ्लो अलग अलग होने की वजह से दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है. वन ब्रांच एंटर बांग्लादेश एंड द अदर वेयर इट इज़ नोन एज पद्मा. बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है अगर पूछा जाए आपको तो क्या जवाब दोगे? पद्मा. एंड द अदर ब्रांच इज नोन एज भागीरथी, दैट इज द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी? भागीरथी. एंड हुगली इज द सेम नेम गिवन इन वेस्ट बंगाल. फाइनली दिस टू ब्रांचेस मीट इन वेस्ट बंगाल. और लास्ट में वो कहाँ जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में. यानी कि देखा जाए तो हमने जो पहले देखा सिंधु रिवर वो जाके अरेबियन सी में मिल रही थी, वैसे वेरेज गंगा जाके मिल रही है बे ऑफ बंगाल में. और हमने और एक चीज़ देखी कि साउथ की जो 3 रिवर्स है वो नॉर्थवर्ड्स फ्लो हो रही, यानी कि जो हमारा साउथ का पोर्शन है वो काफ़ी मतलब प्लेटू रीजन जो है वो काफ़ी ऊपर है, थोड़ा अपलिफ्टेड है फ्रॉम द नॉर्मल लैंड. The flow of Ganga, which is known as Padma in Bangladesh, merges with Brahmaputra river and the combined flow is called Meghna Nadi. अब जो बांग्लादेश में पद्मा रिवर है और जो वो जब ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है तो जो द फ्लो एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश इज सेड टू बी मेघना. The Ganga-Brahmaputra delta is the most fertile delta, that is the Sundarban, deltas of Sundarban, जहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है. तो वो क्या है जिसे हम वहाँ की ट्रीज को हम सुंदरी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ का सबसे फर्टाइल लैंड है. क्यों? बिकॉज द डेल्टा इज फॉर्म ड्यू टू द मिक्सचर एंड ड्यू टू मीटिंग ऑफ 2 rivers, that is Ganga and Brahmaputra. Third river is Brahmaputra river system. The river Brahmaputra originates near Mansarovar in Tibet. कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मानसरोवर. Its source is the near of the place of origin of river Sindhu and Satluj. सिंधु और सतलज जहाँ से ओरिजिन हो रही है उसी काफ़ी नज़दीक के एरिया में ही ब्रह्मपुत्र ओरिजिन होती है. दिस रिवर फ्लोज इन द ईस्ट पैरेलल टू हिमालयन माउंटेन सिस्टम. अब कैसे वो नॉर्थ से ईस्टवर्ड्स जा रहे हैं हिमालयाज, तो उसी डायरेक्शन में ये ब्रह्मपुत्र भी फ्लो होती है. और नमचा बारवा से लेके वो यू टर्न ले लेती है और अरुणाचल प्रदेश में जा घुसती है. और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग नाम से जाना जाता है. कौन से नाम से बच्चे लोग? दिहांग. This river with Lohit and Kinalu tributaries is collectively known as Brahmaputra in Assam. ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज को आसाम में क्या नाम दिया गया है? और लोहित और केनोला की ट्रिब्यूटरीज को ब्रह्मपुत्र. There is less of sedimentation in this area in Tibet. In India, the river passes through regions of heavy rainfall. So, further down, there is more of water mass as well as sediments. Many tributaries meet this river in Assam. Thus, the Brahmaputra flows in a buried form. Every year, there is a huge increase in its water as it overflows during rainy season. हर साल ये रिवर इतनी ओवरफ्लो हो जाती है क्योंकि बहुत सारी एक तो पानी की क्वांटिटी उसमें ऑलरेडी ज़्यादा होती है, प्लस वो ओवरफ्लो होती है ड्यू टू दी रेनफॉल. ड्यू टू हैवी रेन इन आसाम ड्यूरिंग मानसून देयर इज अ ह्यूज डिपॉजिट्स. द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सैंड इन दिस रिवर ब्रिंग्स इट्स बेड हायर. बेड हायर यानी कि उसका जो सी लेवल है वो काफ़ी, वाटर लेवल जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है. सो देर आर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द कोर्स ऑफ द रिवर. इसलिए उसकी जो पाथ है वो काफ़ी बार चेंज हो जाते हैं. So this was about the Himalayan river system. Now the second drainage system we will study is peninsular river. बच्चे लोग हिमालयन नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा था तो पेनिनसुलर रिवर्स है, ऑब्वियसली हम यही अज्यूम करेंगे कि वो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स या फिर प्लेटूज से ओरिजिन हो रहा है. ठीक है. वेस्टर्न घाट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन वाटर डिवाइड फॉर पेनिनसुलर रिवर.
Why? Because it divides water body into two different parts. All these rivers flow eastward and meet Bay of Bengal. Many rivers flow from west of Western Ghats. Large rivers like Narmada and Tapi flow eastwards. East to west जा रही है ये and meet Arabian Sea in the west. सिर्फ यही दो पेनिनसुलर रिवर्स में से यही सिर्फ दो नदियां हैं जो उल्टी बह रही है, बाकी सारी जहाँ के बे ऑफ बंगाल में जा रही है, सिर्फ यही दो अरेबियन सी में जा रही है. नर्मदा ओरिजिनेट्स नियर नाउ नर्मदा बेसिन. आपको इसमें बहुत सारे बच्चे लोग प्लेसेस नाम याद रखने हैं, बहुत सारे रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के नाम भी याद रखने हैं. प्लीज़ बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है. नर्मदा ओरिजिनेट्स नियर अमरकंटक प्लेटू इन मध्य प्रदेश. कहाँ से ओरिजिन होती है? अमरकंटक प्लेटू इन मध्य प्रदेश. कौन सी तरफ फ्लो हो रही है? तो वेस्टवर्ड. It flows through a rocky terrain of marbles near Jabalpur and flows faster due to the slope. The Dudhar Falls are located here. इसमें एक रिवर फॉल है, वाटरफॉल है, वो है दुधार दुधार फॉल्स. एंड इसकी स्लोप होने की वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा है. ये मार्बल्स वाले बेसिन से पास होती है. ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो. इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत छोटी होती है. It has an extensive basin in Madhya Pradesh and Maharashtra. Coastal, sorry. वो हम तापी पे चले गए. उससे पहले most of the river meet at the right angle. Its basin area is spread over Madhya Pradesh and Gujarat. कितनी लॉन्ग है? तो कहा गया है 1312 किलोमीटर. Then is Tapi Basin. Satpura ranges are located in Madhya Pradesh. कहाँ पे located है सतपुड़ा रेंज? मध्य प्रदेश. तापी originate in the Bitul district. It flows in a rift valley. कहाँ से फॉर्म होती है वो? बितुल डिस्ट्रिक्ट की रिफ्ट वैली में से. And it passes parallelly to the Narmada and meets Arabian Sea. It has an extensive basin in Madhya Pradesh and Maharashtra. मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इसका लॉन्ग बेसिन है. Coastal plain between Arabian Sea and Western Ghat is very narrow. So the rivers have a shorter flow. ये दो के एरिया बहुत, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए यहाँ पे बहुत छोटी छोटी रिवर्स फ्लो होती है. मेजर रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड आज साबरमती, माही. ठीक है, वेस्टवर्ड्स जो फ्लो होती है वो है साबरमती और माही. एंड तापी इज ऑलमोस्ट 724 किलोमीटर लॉन्ग. द अदर इज गोदावरी बेसिन. This is the largest of the peninsular river. It starts from the slope of Western Ghats near Nasik in Maharashtra. कहाँ से emerge होती है? From the Western Ghats near Nasik. It is about 1465 km long and it flows to the east and meet Bay of Bengal. Largest basin of the peninsular river अगर किसी के पास है तो वो है गोदावरी. 50% of basin lies in Maharashtra and rest in Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Many tributaries meet Godavari, जिसमें से पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वैनगंगा and Penganga are the major rivers that forms tributaries from Godavari river. Godavari has a longer flow and large basin, so it is called this Ganga of साउथ. इसे कौन से नाम से नाम दिया गया है? गंगा ऑफ साउथ. महानदी बेसिन. महानदी ओरिजिनेट्स इन द माउंटेनियस एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. कहाँ से ओरिजिन हो रही है बच्चे लोग? फ्रॉम द माउंटेनियस एरिया ऑफ छत्तीसगढ़. इट फ्लोज थ्रू ओडिशा एंड मीट बे ऑफ बंगाल. ओडिशा से फ्लो होते होते वो मीट होती है बे ऑफ बंगाल में. 860 किलोमीटर लॉन्ग है. उसका बेसिन छत्तीसगढ़, झारखंड एंड ओडिशा में है. कृष्णा बेसिन. महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है. 1400 किलोमीटर लॉन्ग है. टंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा उसकी ट्रिब्यूटरीज है. और उसका बेसिन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में फैला हुआ है. द नेक्स्ट इज कावेरी बेसिन. ओरिजिन है ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट्स. 760 किलोमीटर लॉन्ग.
Amravati, Bhavini, Hemvati, and Kalini are the major tributaries. Its basin extends in Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu, meets in Bay of Bengal. There are other smaller rivers which flow eastward and meet Bay of Bengal. This river includes Damodar, Brahmini, Vaitrani and Swarnarekha. तो ये सारी रिवर्स भी ऐसी है जो ईस्टवर्ड्स फ्लो होती है. नाउ ये तो हमने देखा अबाउट रिवर्स. नाउ वी विल स्टडी समथिंग अबाउट लेक. There are many lakes in India. Freshwater lakes are found more in Himalayan region. Most of the lake contains water during rainy season. अब लेक्स में काफ़ी लेक्स में हम ऐसा भी नोटिस कर पाएंगे कि वो सिर्फ कब होती हैं. तो इट्स यूजुअली ड्यूरिंग मॉनसून एरिया. एंड ऑब्वियसली लेक इज़ द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. इन कश्मीर ग्लेशियर लेक्स आर फॉर्म्ड, यानी कि ग्लेशियर्स में से मेल्ट होके जो वाटर आ रहा है उसमें से लेक फॉर्म होता है. अ फ्यू लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू विंड, रिवर एंड ह्यूमन एक्शन. किसी किसी को लेक बनाया जाता है. ठीक है. इन रिवर्स हैविंग मेनी मेंडर्स ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड. मेंडर्स यानी काफ़ी खड्डे खुदे आने की वजह से, टर्न्स आने की वजह से ऑक्सबो लेक्स टाइप की सिचुएशन भी आ जाती है. सी टाइड्स हैव क्रिएटेड लंगून लेक्स, यानी कि जब पानी की भर्ती की वजह से जब पानी फ्लो होकर लैंड एरिया में आता है और जब वो जाते जाते वो खड्डों में भर जाके रह जाता है तो दैट क्रिएट्स लंगून लेक. नाउ चिल्का, कोलेरो एंड पुलिकट आर द एग्जाम्पल ऑफ लंगून लेक्स. सांबर लेक इन राजस्थान इज अ सलाइन लेक एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट. सांबर लेक में से सॉल्ट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राजस्थान में. हिमालय हैज़ मेनी फ्रेश वाटर लेक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू ग्लेशियल एक्शंस, यानी कि वो इसलिए फॉर्म होती है बिकॉज दे आर मेल्टिंग फ्रॉम द स्नो एरिया. So water was filled in the depression which led to formation of lakes. Beautiful lakes are formed here due to melting of snow. काफ़ी लेक्स मेल्टिंग ऑफ स्नो जैसे मैंने कहा. फिर कश्मीर में जो वुलार लेक है, ठीक है, दैट हैज़ ओरिजिनेटेड ड्यू टू द टेक्टोनिक ओरिजिन, यानी कि प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे लेक फॉर्म हुआ है. अदर फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ दिस एरिया आर दाल, भीमताल, लोकताल एंड Badapani. Importance of lake. Lakes are useful to man in many ways. कैसे यूजफुल है? बिकॉज फर्स्ट यूज तो उसका ये है कि इट इज़ द फ्रेशेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, सो इट कैन बी इजीली यूज्ड. सम रिवर हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेक्स. in the regions which have more rain, more water can be accumulated in the lakes. The accumulated water can be utilized for irrigation and other purpose. किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है? इरीगेशन पर्पज़, यानी फॉर एग्रीकल्चर यू कैन यूज़ इट. फिर उसमें से जो स्टोर्ड वाटर है दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग दी ड्रॉट टाइम, मतलब जब पानी नहीं है तब आप उसको ईजीली यूज़ कर सकते हो. Reservoirs and lakes are formed due to dam are useful for generating hydel power. अब लेक जो डैम में से रिजर्वियर्स और लेक्स जो बनाए जाते हैं उसमें से हम वो वाटर को यूज़ करते फॉर हाइडल पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फ्यू लेक एनहेंसेस द नेचुरल ब्यूटी, हेंस सच लेक हैव बीन डेवलप्ड एज टूरिस्ट स्पॉट. अब कुछ लेक्स टूरिस्ट स्पॉट बन गए क्योंकि उसकी ब्यूटी ही इतनी है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है. Lakes are also important for fishery as a tourist resorts. काफ़ी लेक के ऊपर रिसोर्ट्स भी बिल्डअप किए गए हैं और कोई लेक फॉर फिशरी. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर. नाउ रिवर से हमें क्या मॉनिटरी क्या बेनिफिट्स मिल रहा है? तो रिवर्स हैव रिमेन्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग ह्यूमन हिस्ट्री. रिवर्स आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, ये हमने देखा, राइट. These are very much important for many human activities. It has satisfied basic needs of man for agriculture and industry. If we talk about, they have developed only due to the rivers. Ancient civilization also flourished along rivers. हमने सिंधु रिवर civilization मतलब इंडस वैली civilization के बारे में पढ़ा था. So India have developed mainly due to this rivers. For example, major cities that have developed near on the bank of rivers such as Delhi, Kolkata, Ahmedabad, Bharuch, Surat have flourished
Well, river is considered to be the base for an agrarian country like India. In recent time, river water is utilized for drinking, irrigation, hydropower, and for navigation also. Now, it is used as a means of transport. It also can be used for drinking purpose. It is obviously if the country like India, who is an agrarian country, yani ki its major productivity and major income is generated from agriculture, then water can play an important role. River water can play an important role for over here. River pollution. I want you people to study this by your own and understand the importance of river. Okay, and rivers in India are said to be लोक माता. हम माता के रूप में उनको देखते हैं, गंगा माता, ठीक है, तापी माता, नर्मदा माता. सो इस एक बहुत एक रिलीजियस रोल के साथ साथ रिवर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होने की वजह से इट इज़ आवर ड्यूटी टू मेक इट pollution free. I want you people to study this by your own and understand it. Now, what are the measures to prevent water pollution? Rules to prevent water pollution should be implemented very strictly. ठीक है, ये जो आप कचरा डालते हो तापी, नर्मदा, गंगा वगैरह में, तो वो नहीं होना चाहिए. वाटर प्योरिफिकेशन प्रोजेक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स ताकि वो अपना वेस्ट वहाँ पे ना डंप कर जाए. Industrial unit should filter harmful content from the chemical effluents before releasing them in water. अब जो liquid waste वो लोग डाल रहे हैं उसे प्योरीफाई करके डालें, ठीक है. In order to keep the water clean, river water clean, every citizen should take an active part so that it does not mix up with the domestic waste that is being released from the cities. मेजरली आप देख रहे हो, मैंने काफ़ी, अगर इफ़ आई टॉक अब मेनली अबाउट द रिवर तापी, सूरत का पूरा जो ड्रेनेज है वो कहाँ पे जाके जो डोमेस्टिक ड्रेनेज लाइंस है वो कहाँ जाके वो लोग मिक्सअप कर रहे हैं तापी रिवर में. सो दैट शुड नॉट बी डन. तो बिफोर वी कंप्लीट विद द चैप्टर आई वॉन्ट यू पीपल टू रीड इट थरली and then in the next lecture we will solve the exercise. Thank you students for listening carefully. Have a nice day.